ମୁଁ ଜଗଦୀଶ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବୀଣାପାଣି କୋଚିଂ କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲା ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପରମାଣୁ ଓ ଅଣୁ। କ'ଣ ପଢିବା? ପରମାଣୁ ଓ ଅଣୁ। ବିଷୟ ହେଉଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସିଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପରମାଣୁ ଓ ଅଣୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖା ଆମର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିବା ବା ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଦେଖିବା ଯେତେ ସବୁ ଦାର୍ଶନିକ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ପଦାର୍ଥ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କଣାଦ। କ'ଣ ନାମ ଥିଲା? ମହର୍ଷି କଣାଦ। ସେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବା ମତ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ସେଇଟା ନା ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ବିଭାଜନ କରିବା ଯଦି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ମିଳିବ ଏବଂ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହେବ ସେ ଯାହାକୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ସେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ପରମାଣୁ। କ'ଣ ନାମ ଦେଇଥିଲେ? ପରମାଣୁ। କାହାକୁ କହିଥିଲେ ନା ପଦାର୍ଥର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭାଜନ କରିବା ତେବେ ସେ କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏପରି ଏକ ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହେବ ଯାହାକୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଶେଷ ଅଂଶକୁ ସେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ପରମାଣୁ। ଦେଖ ପିଲେ ଇଏ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ମହର୍ଷି କଣାଦ କହିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭାଜନ କରିବା ତେବେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏମିତି ଏକ ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହେବ ଯାହାକୁ ଆଉ ବିଭାଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଶେଷ ଅଂଶକୁ ସେ କହିଥିଲେ ପରମାଣୁ। ଠିକ ସେମିତି ପିଲେ ଜଣେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଦାର୍ଶନିକ ଡେମୋକ୍ରିଟସ୍ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଡେମୋକ୍ରିଟସ୍ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାକୁ ସେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆଟମ। ଆଟମ ସେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାକୁ। ଏଇ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଆଟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବିଭାଜ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲି ପିଲେ? ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଆଟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବିଭାଜ୍ୟ। ଏଥିଲା ଡେମୋକ୍ରିଟସଙ୍କର ମତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ ନା କ'ଣ ନା ପଢ଼ିବା ଏ ଯୋଉ ପରମାଣୁ ଏବଂ ଅଣୁର ଗଠନ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ପଦାର୍ଥ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଆମେ ଜାଣିଲେନି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସଂଯୋଗ ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲେ? ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲେ? ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ। ତାକୁ ଇଂରାଜୀ କୁହାଯାଏ ଲ ଅଫ୍ କେମିକାଲ କମ୍ବିନେସନ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଲ ଅଫ୍ କେମିକାଲ କମ୍ବିନେସନ। ଦେଖ ପିଲେ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ କ'ଣ ମନେ ରଖିତ ପିଲେ ଆମ ପୁସ୍ତକରେ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମକୁ ଦିଟା ଲ ଦେଇଛି। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ। ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ ଅଫ୍ ମାସ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ ଅଫ୍ ମାସ୍।
बा ताको वस्तुत संरक्षण नियम कहा जाए एवं द्वितीयटी होउची कोन ना स्थिरानुपात नियम कोन कहबा स्थिरानुपात नियम बा ताको इंग्रजी रे कहा जाए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कोन कहबा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नोट कर दे प्ले टिके अब कौन एवडे तुम लॉन्ग क्वेश्चन होचे रासायनिक संयोग नियम कौन सेडा को पुरेला वस्तुत संरक्षण नियम आ उडेला स्थिरानुपात नियम चला हमें प्रथमे प्ले आलोचना करबा कौन ना वस्तुत संरक्षण नियम कौन आ पुरे प्ले टिके नोट कर नथबो एवं जो प्ले माने हमर ऑफलाइन रे पढुचो इंस्टीट्यूट रो ऑफिस को आसीगिरी पीडीएफ नै पारो तुम जेरॉक्स कर नेबो एवं नै जाय पारो नोट को देखो पहले हेडिंग दियो वस्तुत संरक्षण नियम वस्तुत संरक्षण नियम कौन बा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन पढ़िया पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तले पहले मन रखो ए नियम को ए एल लाभस्वर कौन कहली ए एल लाभस्वर साइंटिस्ट प्रदान करथिले से कौन कहिथिले ना जते बेले एक रासायनिक परिवर्तन बा रासायनिक प्रतिक्रिया घटे कौन कहली पहले जते बेले एक रासायनिक परिवर्तन बा रासायनिक प्रतिक्रिया घटे सेतबेले वस्तुतर परिवर्तन घटे नाही कौन कहली जते बेले एक रासायनिक जेतेबेले एक रासायनिक परिवर्तन बा रासायनिक प्रतिक्रिया घटे सेतेबेले वस्तुतर परिवर्तन घटे नहीं वस्तुतर परिवर्तन घटे नहीं लगे स्पीड लेखा में पड़ुची क्योंकि तुम जहाँ कह जाउची तुम पेपर एंड पेन माध्यम लिखि रखियो वस्तुत संरक्षण नियम कौन के कहथिले ए एल लाभस्वर साइंटिस्ट ए लाभस्वर कहथिले कौन कहथिले जेतेबेले एक रासायनिक परिवर्तन बा रासायनिक प्रतिक्रिया घटे सेतेबेले कौन वस्तुतर परिवर्तन घटे नहीं कौन कहथिले से रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुतर परिवर्तन घटे पहले हम एक परीक्षा माध्यम ताको बुझिबा नोट कर दे ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन परीक्षा विषय वर्णना करा पहले मन रखो ताको सुंदर भाव वर्णना करके लिखो जे गोटे परीक्षा आवश्यक उपकरण कौन रोचे तार परीक्षण कौन है पर्यवेक्षण कौन देख कौ सिद्धांत उपनीत हो सुंदर भाव वर्णना कर लिखो तब तुमको संपूर्ण रूपे मार्क दिज्व आम एक परीक्षा करवा कौन वस्तुत संरक्षण नियम परीक्षा करवा देख मु परीक्षा नहीं तार आवश्यक उपकरण कौन कौन हो लिख पे आवश्यक उपकरण कौन कौन पे ना गोटे कनिकाल फ्लास्क नौ कनिकाल फ्लास्क नौ गोटे आ कौन नौ कर्क नौ सूता नौ आ गोटे कौन नेबी ज्वलन नड़ी टेस्ट ट्यूब बोल तुम कह पार कौच एवं आउ कौन केत रासायनिक पदार्थ नौ गोटे है सोडियम सल्फेट आ गोटे है
बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड देख पिले ये सोडियम सल्फेट रो संकेत होची कौन Na2SO4 एवं बेरियम क्लोराइड होची BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ताहले ये थला हमरो आवश्यक उपकरण। तो कोन करिए पिले गोटे परीक्षा करबा बा परीक्षण ताको मोटे चित्र माध्यम रे मु देखै होची ता लेखो कोन परीक्षण। परीक्षण केमते करिया पिले ना एला कॉर्क टिपिन एला कॉनिकल फ्लास्क सपोज एला हम ट्यूब ये दुईटा द्रवण नहीं छे हमको कौन ना अलग अलग गोटे द्रवण को मु किछि काच नळी मध्ये रखुछि एवं अन्य को फ्लास्क रे रखुछि। ए काच नळी को मु सूता द्वारा बांधुछि एक मु कर एला जळन नळी, जळन नळी तापर पिले ए जळन नळी रे मु किछि कोन नउछि बेरियम क्लोराइड नउछि, बेरियम क्लोराइड एवं फ्लास्क रे कोन करबी ना सोडियम सल्फेट कोन करछि सोडियम सल्फेट रो द्रवण को रखिछि। ताले परीक्षण कोन करबले ना प्रत्येक पदार्थ को सजाया को लिखिबो जे हमें गोटे कॉनिकल फ्लास्क नै परिया कोन लिखिबा कोन एक कॉनिकल फ्लास्क रे सोडियम सल्फेट अल्प द्रवण एवं एक जळन नळी रे बेरियम क्लोराइड रो किछि द्रवण हमें नेबा। तापर कोन करबा ना जळन नळी को फ्लास्क रे एपरि भाबे रखिबा जेमति कि बेरियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट द्रवण मिसिबा नहीं। जेतले मिसि नथिया अवस्था रे कोन करबा ताको हमें ओजन मापिक रखिबा तांकर ए द्रवण रो ओजन केते रहिछि। तापर हमें परीक्षण कोन करबा परीक्षण सरला परे एथि जिंस हम कोन करबा परीक्षण रे लिखि देबा जे गोटे कॉनिकल फ्लास्क नबा गोटे जळन नळी नेबा एवं जळन नळी मध्ये रे कोन करबा ना बेरियम क्लोराइड रखिबा एवं कॉनिकल फ्लास्क रे सोडियम सल्फेट रखिबा ताकू नै कि हम कोन करबा तारो ओजन मापबा। देन तापर परीक्षण सरला परे हम कोन करबा ना पर्यवेक्षण करबा कोन हम देखिले जे एमान को ओजन देखले जहा रहितबो कि समय पर कोन ना ए जो हमरो काच नळी मध्ये जो रहिछि बेरियम क्लोराइड रहिछि ताकू कोन करबा अल्प हमें ढोले देबा काच नळी को तेले कोन होबो ना ए जो बेरियम क्लोराइड काहे तो मिसि जिवो सोडियम सल्फेट सहित मिसि जिवो कोन पर्यवेक्षण कोन देखबा ना ए बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट सहित मिसि देबा। मिसि दे साला परे समर को जोटे रासायनिक प्रतिक्रिया संघटित होबो रासायनिक प्रतिक्रिया संघटित होय साला परे पुनी थरे तार ओजन आइ मापबा। तले कोन लिखिया सेतिरे ना वर्तमान प्लास्टिक को टिके अल्प भाबरे में ढोले देबा ढोले दिले कोन हेबो ना काच नळी भर जो हमर बेरियम क्लोराइड रहिछि से सोडियम सल्फेट द्रवण सहित मिसि जिवो ता भलो भाबरे मिसै देबा। मिसै सरला परे हमें लक्ष्य करिया कोन प्रथम जो हमर मिसि सरला परे कोन गोटे जो द्रवण सृष्टि होइतबो फ्लास्क जो द्रवण हमर तयारी हेबो तार ओजन वर्तमान हम मापिया। मापि सरला परे हम देखिया जे प्रथम जो ओजन मापितले जेतोळे दुटा सर हम द्रवण को मिसै नथिले जतके ओजन थिला एवं वर्तमान जो मिश्रित द्रवण ओजन मध्ये समान हो कोन हो जे जो द्रवण सृष्टि होइतबो बा ताकू के धळा रंगर अवक्षेप सृष्टि होइतबो ताकू कहता हमें बेरियम सल्फेट बा जो द्रवण सृष्टि हेबो ताकू बेरियम सल्फेट बोली तारेतबो। ए पर्यवेक्षण देखिबा कोन जे मो टिके केमिकल रिएक्शन लिखि दोछि ताकू भला भाबे नोट करबो टिके स्थान कम अच्छे ठीक अच्छे पिले याको देखो ताको रिएक्शन केमती हेबो मु कोन नेथिली प्रथमे सोडियम सल्फेट नेथिली सोडियम सल्फेट नेथिली आ कोन नेथिली ना बेरियम क्लोराइड नेथिली बेरियम क्लोराइड
रासायनिक प्रतिक्रिया बासमान को मेसेज दे सारला पर कोन सृष्टि हो कहली सृष्टि हो कोन बेरियम सल्फेट एवं कोन कहली ना सोडियम क्लोराइड कौन कहली पिले ना सोडियम सल्फेट नहीं एवं बेरियम क्लोराइड नहीं जो आम से द्रवण को मिसाई देवा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया हम और गोटे धला रंगर गोटे अवक्षेप सृष्टि हो या रंग केमती धला रंग हो धला रंगर अवक्षेप या कहुए कौन बेरियम क्लोराइड एवं आउ कौन सृष्टि हम सोडियम क्लोराइड बा NaCl आम कौन वैज्ञानिक भाषा में रिएक्शन देखा पार Na2SO4 तो कौन कले बेरियम क्लोराइड BaCl2 रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे कौन सृष्टि है ना BaSO4 प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड को NaCl कहा जाए बेरियम सल्फेट को BaSO4 कहा जाए और बेरियम क्लोराइड BaCl2 सोडियम सल्फेट बर्तमान कौन करा जो ये हूँ प्रतिकारक पार्श्व ये है उत्पादक पार्श्व ताले प्रतिकारक पार्श्व रे जो आम नहीं द्रवण दीटा तार ओजन जहाँ उत्पादक पार्श्व जो सृष्टि है एम ओजन के सामान हम तो सिद्धांत कौन पाइबा ना ये रासायनिक आम जाना सिद्धांत कौन लिखा एक रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुतर सृष्टि नहीं किंबा विनाश नहीं यार सिद्धांत लास्ट लिखा पिला कौन आम कौन सिद्धांत पाइले रासायनिक प्रतिक्रिया ना एक रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुतर सृष्टि किंबा विनाश नहीं किए दर्शाइले ना AL लाभेश्वर प्रसाद प्रथम हमको दर्शाइले कौन वस्तुतः संरक्षण नियम कौन ठीक अच्छे पे टे नोट कर नहीं जाओ वस्तुतः संरक्षण नियम चला पे आपको जीवा देन सेकंड लॉ हमर कौन थिला सेकंड थिला कौन ना स्थिरानुपात नियम कौन थिला पहले स्थिरानुपात नियम या को इंग्रजी में कौन कहा जाए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन कहबा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्थिरानुपात नियम कौन पहले ना एक रासायनिक यौगिक मौलिक गुड़िक एक निर्दिष्ट वस्तुत्व अनुपात रही था कौन कहली एक रासायनिक यौगिक मौलिक गुड़िक एक निर्दिष्ट वस्तुत्व अनुपात रही थांती नियम कौन पे देख जे एक रासायनिक यौगिक मौलिक गुड़िक एक निर्दिष्ट वस्तुत्व अनुपात रही थांती उदाहरण देखा पे मुझे कह जल कौन कह जल जल आम कौन कह वैज्ञानिक H2O ताले कौन रही उद्जान रही अम्लजान रही देख पे गोटे जल अणु हाइड्रोजेन बा उद्जान एवं ऑक्सीजन बा अम्लजान वस्तुत्व अनुपात हूँ केते वस्तुत्व 1:8 केते कहली 1:8 तबे मन रखता पे जदि गोटे जल अणु को आम भांगा सदा सर्वदा 1 ग्राम हाइड्रोजेन बा उद्जान पाइबा एवं 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलिबो और कहली उद्जान बा हाइड्रोजेन केते रहइबो 1 ग्राम रहइबो जदि हमें 9 ग्राम जल को नेबा कोन कहली 9 ग्राम रो जल अणु नेबा केते कहली प्ले
देखो तुमको 9 ग्राम रो जल अणु को नेबा 9 ग्राम वस्तु जल अणु को नेबा ताको भांगीबा भांगी देले कोन हबो सदा सर्वदा 1 ग्राम रो गोटे हाइड्रोजन अणु मिलिबो एवं ऑक्सीजन कते 8 ग्राम रो ऑक्सीजन अणु मिलिबो तम तांकर वस्तुत्व अनुपात केते होची 1:8 ए 1:8 रेशियो रे कोन उद्जान एवं अम्लजान मिसिकी गोटे जल अणु गठन करछन्ते ठीक से हम कोन करबा आ गोटे उदाहरण नै परिबा जे कार्बन डाइऑक्साइड हम नै परिबा CO2 जक हम अंगारकाम्ल गैस बोले हम कार्बन डाइऑक्साइड बोले कहउछे तले कार्बन डाइऑक्साइड रे कोन प्ले कार्बन रो परिमाण माने कोन कार्बन डाइऑक्साइड रे केते रेशियो रहि थांती न मन तो प्ले 3:8 माने कार्बन रहिछि 3 भाग एवं अम्लजान रहउछि 8 भाग केते कहली प्ले 3 भाग रहउछि कार्बन अम्लजान रहउछि 8 भाग तांको रेशियो केते होछि 3:8 ताले ए नियम को के कहते पले ना जेएल प्राउस्ट के कहतले प्राउस्ट प्राउस्ट का नियम बा ताकू अन्य नाम यार जो हमरो स्थिरानुपात नियम रो अन्य नाम रहउछि कोन निर्दिष्ट अनुपात नियम कोन कहबा निर्दिष्ट अनुपात नियम बोली कहबा ई नियम रो अन्य को नाम रहउछि कोन ना निर्दिष्ट अनुपात नियम कौन कहली प्ले निर्दिष्ट अनुपात नियम नियम ना स्थिरानुपात नियम अन्य नाम होची निर्दिष्ट अनुपात नियम याकू कहतिले जेएल प्राउस्ट के कहतिले जेएल प्राउस्ट तले पहले नोट कर नेबो एतला तमरो प्रथम क्लास परमाणु एवं अणु चैप्टर रो एवं सेकंड क्लास रा हम पढ़वा डाल्टन को तो थैंक यू प्ले जदि क्लास को भल लागितो टिके लाइक करिवो शेयर करिवो एवं सब्सक्राइब मध्य करिवो।